Okay, good morning, everyone. Uh, Good morning, ma'am. good morning. Good morning, ma'am. Good morning. I hope now art Good integrated morning, ma'am. activity is clear. It should be in A4 size Yes, sheet. ma'am. A4 size sheet should be used for presentation. You can use the pictures or draw the pictures also. And you have to take these three topics only: climate, weather, and this natural vegetation for a comparative study. Okay. And I will not provide you any link to submit this art integrated activity. You have to type the pages after disaster management which you have done already, the disaster management activity, and then those pages you will have to hand over to me. These both the activities you have to hand it over to me in the school. So try to complete it with the first means first week of Feb. The date is not confirmed yet, but you be ready with the work. Okay. Now, as we have already started with this lesson, climate, and we have clearly understood that climate refers to the weather condition on the large area, and whatever conditions on the large area and for a longer period of time, एक लंबे समय के लिए, जैसे we can take the northern part climatic condition is very cold, मीन्स वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड ही कहते हैं हम, कि कोल्ड ही रहता है हमेशा के लिए। तो इट परसिस्ट मोर देन 30 ईयर्स तक हम समझ सकते हैं कि वो एक ही तरह का वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन रहता है। और वेदर है, तो वेदर हम देखते हैं कि इट इज एट अ वेरी पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट टाइप ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन इज देयर, वी इट रेफर्स टू द वेदर। जैसे अभी मॉर्निंग में क्या वेदर है? मॉर्निंग में ठंडा है, तो दिस इज द वेदर कंडीशन। इट इज हॉट, इट इज ह्यूमिड वेदर। आज सनी है, अभी इवनिंग में थोड़ा सा वापस से विंडी हो जाएगा। तो ये होगा हमारा वेदर कंडीशन। न्यूज़ रिपोर्ट्स भी आप देखोगे, तो रीडिंग में भी न्यूज़ रिपोर्ट्स वेदर कंडीशंस पे दी जाती है। मीन्स डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन, टाइम टू टाइम उस वक्त की क्या कंडीशन है वेदर की, वही दी जाती है। क्लाइमेट के बारे में नहीं दिया जाता, बिकॉज क्लाइमेट रिमेन्स द सेम। Hope it is clear, climate and weather. Now climatic controls also we have understood that how latitude, in our previous class we have understood clearly how latitude, altitude, pressure and wind system and distance from the sea, that is continentally. Continental means uh, as you move away from the sea, the distance from the sea is more, means when you move interior of the country, you will find that excessive hotness, या तो ज़्यादा सर्दी में ज़्यादा, ठंडी में ठंड और ज़्यादा गर्मी में गर्म होगी, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटली। नाउ ओशन करंट्स आल्सो यू हैव read about that the moving of the waves with the wind and in the same direction, it is called it creates the ocean currents, and it can be warm ocean currents also, and cold ocean currents also. And relief feature also helps in for the climatic controls. Relief features how that if uh, um, means mountain or hill is there in the means between the फ्लोइंग ऑफ द विंड, विंड जब बह रही है उस पे बीच में अगर हिल या आ गई है, तो एक तरीके से वहाँ का रिलीफ फीचर क्या होगा, वो जो हिल है या माउंटेन्स है वो एक तरीके से बैरियर का काम करेगी और उसको आगे जाने से रोकेंगी। एंड दैट इज वाई वट एवर ज वेपर कैरिड बाय द विंड ब्लोइंग, वो उससे टच होकर के माउंटेन से या हिल से टच होकर के वहीं पर गिर जाएंगी। पहले वो लीवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएंगी। लीवर्ड डायरेक्शन मींस फेसेस अवे फ्रॉम द विंड, मींस बीच में एक बैरियर आ गया है और उसके बैक साइड में आप नहीं जा सकते, वहां वो विंड्स नहीं जा पाएंगी, और इसीलिए उससे पहले ही माउंटेन या हिल से पहले ही बारिश हो जाएगी। एंड दैट इज वे the relief feature also helps for the climatic control. So all these we have already understood in our previous class.
Now, factors affecting India's climate. Now, what all factors affect India's climate? The same thing, the latitude. How latitude affects India's climate? The Tropic of Cancer passes through the middle of the country from the Run of Kutch in the west to Mizoram in the east. Now, as you know, the Tropic of Cancer passes through the middle of the country and from Run of Kutch to west to Mizoram. मिजोरम से ले रन ऑफ कच्छ से लेके मिजोरम तक ईस्ट में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल मिडिल ऑफ द कंट्री इंडिया के बीच में से पास होता है. Almost half of the country lying south of the Tropic of Cancer belongs to tropical area. That means, wait a second. Now this when this Tropic of Cancer passes जब वो सेंटर ऑफ इंडिया से, तो यहाँ का जो ऑल द रिमेनिंग एरिया मींस बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया. यहाँ का जो भी एरिया है साउथ का ट्रॉपिकल एरिया के रूप में बोला जाता है. एंड ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक लाइज इन द सब ट्रॉपिक्स. जो नॉर्दर्न पार्ट का है वो सब ट्रॉपिक्स के रूप में मींस ट्रॉपिकल तो है ही यहाँ पर. अब जो इंडिया का पार्ट है वो मोस्टली आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर आता है नीचे की तरफ, जो अपना साउथ का पार्ट है. और जो नॉर्दर्न का एरिया है, नॉर्थ एरिया है, वो सब ट्रॉपिक्स मींस ट्रॉपिकल एरिया. और जो अपना ये पोल्स के पास है वहां तक, आर्टिक तक हम देखते हैं कि पोल्स के पास तक और ट्रॉपिक से लेकर ये सब ट्रॉपिक वाला एरिया हो जाता है. So therefore, India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climate. So as India is half of the country is lying south of Tropic of Cancer, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मोस्टली क्या है साउथ की तरफ ज़्यादा है, तो वहाँ पर ट्रॉपिकल अपना क्लाइमेट रहेगा. और उससे जो ऊपर ट्रॉपिक से छोड़ कर के थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे पोल्स की तरफ, तो वो सब ट्रॉपिकल रीजन हो जाएगा हमारा. तो इट लाइज टू द सब ट्रॉपिक्स. देयरफॉर इंडियाज क्लाइमेट हैज करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. मींस ट्रॉपिकल भी बोलते हैं और सब ट्रॉपिकल. The portion lying to south of the tropic falls in the tropical zone, while the portion which lies north of the tropic falls in the subtropical zone. So इस तरीके से जो नॉर्दर्न पार्ट में है तो वो सब ट्रॉपिकल जोन में जाता है, और जो सदर्न पार्ट में पोर्शन है इंडिया का वो ट्रॉपिकल जोन में जाता है. इस तरीके से हम देखेंगे कि इंडिया की क्लाइमेट बोथ ट्रॉपिकल एज वेल एज नॉन ट्रॉपिकल दोनों के लिए इफेक्ट करती है. इंडियाज क्लाइमेट हैज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. दोनों तरीके की क्लाइमेट इंडिया में देखी जा सकती हैं. Now altitude. Altitude means the height. India has mountains to the north. North की तरफ इंडिया के क्या है mountains which have an average height of about 6,000 meters. India also has a vast coastal areas where maximum elevation is about 30 meters. The Himalayas prevent the cold winds from Central Asia from entering the subcontinent. It is because of these mountains that this subcontinent experience comparatively milder winters as compared to Central Asia. Now India has mountains. वापस हम एक बार देखते हैं कि India has mountains to the north. नॉर्थ की तरफ इंडिया के माउंटेन्स हैं जिनकी एवरेज हाइट कितना है 6,000 मीटर्स. और इंडिया इज ऑल्सो वास्ट कोस्टल एरिया. नीचे का जो एरिया है where water bodies related to water bodies which is attached to the water bodies, it is the coastal area. And where the maximum elevation is about 30 meters, ज़्यादा से ज़्यादा 30 meters ऊंचा है. The Himalayas prevent the cold winds from Central Asia.
अब जो सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड्स आती है, वो हिमालयस एक तरीके से बैरियर बन जाती हैं, बीच में रुकावट बन जाती हैं उन कोल्ड विंड्स के लिए, जो कि सेंट्रल एशिया से आती है। सेंट्रल एशिया मीन्स जो कि पोलर रीजन की तरफ से जो ठंडी हवाएँ आती है, उसके लिए एक हिमालयस बैरियर्स का रूप में काम करती हैं और इसीलिए इतना ठंडा नहीं होता है इधर। एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं होगी हिमालय में कि हम बोल सकते हैं कि एक्सट्रीम कोल्ड हो गया है। तो क्यों एक्सट्रीम कोल्ड की कंडीशन नहीं रहती है हिमालयस पे भी? क्योंकि ये हिमालय जो एक तरीके से जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम है, वो बैरियर के रूप में काम करता है। वो बैरियर होता है किसके बीच में? जो कोल्ड विंड्स सेंट्रल एशिया से आ रही हैं, वो कोल्ड विंड्स के लिए एक तरीके से बैरियर का काम करते हैं, ताकि वो कोल्ड विंड्स इतना मीन्स पेनिट्रेट नहीं करें अपने इंडिया की तरफ और इसीलिए यहाँ की कंडीशन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन नहीं रहती है। It is because of these mountains that these subcontinents experience comparatively milder winters. इसीलिए हल होती है विंटर्स में सर्दी होती है बट माइल्ड होती है, ज़्यादा नहीं होती है एज कंपेयर टू सेंट्रल एशिया। I hope this altitude is also understood, the height. और धीरे-धीरे जैसे ही हम नीचे साउथ की तरफ जाते हैं, तो ये साउथ की तरफ वाटर बॉडीज़ हैं और वाटर बॉडीज़ से क्या होता है मॉडरेट टेम्परेचर रहता है बिकॉज़ ऑफ द लैंड एंड सी ब्रीज़ और लैंड और सी ब्रीज़ की वजह से यहाँ का कंडीशन ना तो ज़्यादा हॉट रहता है, ना ज़्यादा ठंड महसूस होती है। तो क्लाइमेट ओवरऑल मीन्स बैलेंस में रहता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ लैंड एंड सी ब्रीज़। पानी इतनी जल्दी ठंडा जैसे पानी के पास है जो एरियाज़ कोस्टल एरियाज़ मुंबई एंड ऑल वी से तो ये मीन्स इनका टेम्परेचर हम लोग देखते हैं कि नॉट सो मच हॉट नॉट सो मच कोल्ड बिकॉज़ पानी ना तो जल्दी ठंडा होता है, ना जल्दी गर्म होता है और इसीलिए उसको टाइम लगता है एंड दैट मच जब तक वो लैंड और सी ब्रीज का काम होता है वो टेम्परेचर बैलेंस रखने का काम करती हैं इसीलिए हाइट ऑफ एल्टीट्यूड भी मींस हाइट भी अपना ये क्लाइमेट डिसाइड करने में इंडिया का काम करता है नाउ प्रेशर एंड विंड्स द द म्यूट योरसेल्फ if any doubt raise your hand up now pressure and winds in climate and associated weather. So Gauranshi want me to explain climate and weather both again. As you know that climate is refers to the sum total though in a normal way in general way we take क्लाइमेट एंड वेदर सोचते हैं कि हम एक से ही एक ही चीज़ है एक ही टर्म के लिए यूज़ करते हैं कि हाँ ये मौसम के लिए काम में लिया जाता है क्लाइमेट और वेदर के लिए बट दीज टू आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर क्लाइमेट हम तरीके से बोल सकते हैं कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ वेदर वेदर तो डे टू डे चेंज है इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन जैसे और क्लाइमेट है लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ द सन रेडिएशन जो कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट है अर्थ सरफेस पे और इट रेफर्स टू द सम ऑफ द वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और ये लॉन्ग पीरियड कम से कम 30 इयर्स तक जो है वो सेम रहता है एक तरीके से इसीलिए क्लाइमेट को हम बोलते हैं कि ये चेंज नहीं होता 30 साल से और इसको हम लार्जर एरिया को हम उसमें जब देखते हैं लार्जर एरिया के रूप में देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये क्लाइमेट यहाँ की ऐसी है अब जैसे हम देखते हैं सिर्फ एक राजस्थान की क्लाइमेट देखते हैं हम इंडिया का मैप लेते हैं सिर्फ एक राजस्थान की क्लाइमेट लेते हैं तो राजस्थान की क्लाइमेट हम क्या देखते हैं बहुत हॉट एंड ह्यूमिड है ठीक है ना क्योंकि ये पूरा ओवरऑल लिया है अब इसमें से सिर्फ एक पार्ट ले लो राजस्थान का न लेकर के सिर्फ एक पार्ट ले लो राजस्थान के अंदर हम ले लो कि ये क्या कहते हैं
उदयपुर ले लो या अजमेर ले लो या जयपुर ले लो, यहाँ का क्या वेदर है उस वक़्त। तो ये एक स्मॉलर स्केल पे हम उसी वक़्त क्या डिसाइड कर रहे हैं, उस वक़्त क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, उस वक़्त अभी सर्दी है यहाँ जोधपुर में, अभी हम जोधपुर लेते हैं, तो जोधपुर में क्या है अभी इस वक़्त मॉर्निंग के वक़्त क्या है, ठंडी है। तो ये अपना वेदर बता रहा है कि इन द वेदर कंडीशन इन द मॉर्निंग जस्ट नाउ इज़ मीन्स वेरी कोल्ड। और ओवरऑल राजस्थान के बारे में हम देखेंगे, लार्जर एरिया के बारे में देखेंगे और लार्जर टाइम पीरियड के बारे में देखेंगे, तो एक तरीके से हम बोलेंगे कि राजस्थान का हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है। आ गया समझ में इससे क्या कहते हैं एग्जाम्पल से। अब हम जम्मू एंड कश्मीर ऊपर साउथ की तरफ देखते हैं। साउथ की तरफ हम देखेंगे कि यहाँ पर ओवरऑल ठंडा रहता है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है हमेशा ठंडा ही रहता है। ये हम क्लाइमेट देख रहे हैं क्यों? क्योंकि हम स्टार्टिंग से इतने सालों से एक ही तरीके की एटमॉस्फेरिक कंडीशन वहाँ देखते आए हैं। इसीलिए हम ये बोलेंगे कि वहाँ का क्लाइमेट जम्मू एंड कश्मीर का कोल्ड है। नियर द पोलर रीजन्स द क्लाइमेटिक कंडीशन इज वेरी कोल्ड। और वेदर के रूप में देखेंगे तो उस वक्त उस टाइम पीरियड में पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पर्टिकुलर एरिया में क्या कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, उसे हम बोलेंगे वेदर। That is in the morning daily reports, also newspaper or also shows weather reports, weather forecast। वो कि अब क्या वेदर रहेगा, क्या वो मीन्स कंडीशन रहेगी एटमॉस्फेयर की वहां उस जगह पे उस पर्टिकुलर एरिया पे। आई होप इट इज क्लियर ना गौरंशी, वेदर और क्लाइमेट। ओके फाइन नाउ। Yes, then it is the climate is very what? Climate is monsoon type of climate, रेनी क्लाइमेट। सो ओवर मीन्स जो लंबे समय से चलता है एक ही जगह पे जो मतलब ऑफ एंड ऑन बारिश होती रहती है, तो रेनी मॉनसून क्लाइमेट अपने यहाँ पर इंडिया में ओवरऑल देखा जाए तो मॉनसून क्लाइमेट है। और यहाँ पर तो सीजन में डिवाइड किया गया है, इस वेदर कंडीशन को सीजन्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो जैसे कंटिन्यूशन में जो एक ही प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है, जैसे 3 मंथ्स के लिए कंटिन्यू गर्मी पड़ रही है तो हमने समर सीजन बोल दिया। और कंटिन्यू रेनफॉल हो रही है और जैसे सर्दी पड़ रही है आपकी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, तो हमने इसको विंटर सीज़न के रूप में बोल दिया। तो ये वेदर कंडीशंस अगर कंटिन्यूएशन टाइम पीरियड में कंटिन्यू हो रही है, एक ही प्रोसेस है इनका, तो हमने उसको एक तरीके से सीज़न के नाम से डिफाइन कर दिया गया है उसको। Now pressure and winds. The climate and associated weather condition in India are governed by the following atmospheric condition. Now the climate and associated weather conditions. Now whatever weather condition of that particular area in India, they are governed by the atmospheric condition. उस वक्त atmospheric condition क्या है और ये depend करता है pressure and surface wind से, upper air circulation and western cyclonic disturbances and tropical cyclones से। Now India lies in the region of northeasterly winds. अब नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स मीन्स नॉर्थ ईस्ट से जो विंड्स आ रही है उसे बोलेंगे हम, सॉरी, जो नॉर्थ ईस्ट से जो विंड्स आ रही है। आई वाज टेकिंग दिस ड्राइंग फॉर पेंसिल। नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स मीन्स नॉर्थ और ऊपर से ईस्टर्ली विंड्स, एंड दे ऑलवेज दीज विंड्स ब्लो ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन, स्ट्रेट नहीं है वो।
तो ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट से आ रही है, तो दैट इज नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स. सो इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स. These winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. These northeasterly winds originates where from the subtropical. अब मैंने बताया था मोस्ट पार्ट ट्रॉपिक के अंदर है, ट्रॉपिक्स के अंदर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर है, बट ऊपर वाला जो पार्ट है इंडिया का, द सदर्न पार्ट है, वो सब ट्रॉपिकल. सो अब ये जो ओरिजिनेट हो रही हैं ये विंड्स, ये कहाँ से? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स ब्लो कर रही हैं, एंड दे ब्लो साउथवर्ड्स, गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू कोरोलिनस फोर्स. नाउ दिस north easterly winds, when they are blowing, they are originated from the subtropical high pressure belt to the northern hemisphere and they blow साउथवर्ड्स. और ये कहाँ पर जा रही हैं? ये साउथवर्ड्स डायरेक्शन में जा रही हैं, साउथ की तरफ जा रही हैं. गेट डिफ्लेक्टेड बाय द गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू कोरोलिनस फोर्स. और ये नॉर्थ से नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स जा रही हैं साउथ की तरफ, और ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, राइट की तरफ पास हो जाती हैं ड्यू टू कॉर्लिस फोर्स. नाउ व्हाट इज दिस कॉर्लिस फोर्स? कॉर्लिस फोर्स क्या है? कॉर्लिस फोर्स एन apparent force. Apparent means it is clearly visible force which is caused by the earth rotation. ये अर्थ रोटेशन के द्वारा एक विजिबल फोर्स है. द कोरोलियस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल for deflecting winds, for changing the deflecting winds means for changing the direction of the winds. ये Coriolis force straight away visible force है जो कि अर्थ रोटेशन के द्वारा हुआ जाता है, and this Coriolis force is responsible for the change in the direction of the winds towards the right to the northern hemisphere and towards the left in the southern हेमेस्फीयर. सर्दर्न हेमेस्फीयर में लेफ्ट की तरफ और नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में राइट की तरफ इसको करते हैं. दिस इज नोन एज फेरेल्स लॉ, और इसको ही फेरेल्स लॉ कहते हैं. यू कैन अंडरलाइन दिस, व्हाट इज फेरेल्स लॉ और व्हाट इज कोरोलिस फोर्स. दिस पैराग्राफ यू कैन अंडरलाइन दिस. क्लियर? So again I am explaining what is Coriolis force. It is an apparent force. Apparent means it is clearly visible force by the caused by the rotation of earth. Earth rotate हो रही है, though we are not able to feel, but it is natural that earth is rotating and the Coriolis force is responsible. और जब Coriolis force आता है वो clearly visible है, earth rotation की वजह से होता है, and this helps in the change in the direction of the wind. अब wind का direction change करता है कैसे? towards the right in the northern hemisphere and towards the left. जो wind का direction right में northern hemisphere and in the southern hemisphere towards the this left. So this is known as Farrell's law, और इसको ही Farrell's law को के लिए बोला जाता है, कहा जाता है. Now they blow southwards, get deflected to the right due to Coriolis force and move towards the equatorial low pressure areas. और वो कहाँ move करते हैं? Equatorial low pressure areas में. Low pressure means जहाँ पर pressure कम है वो वहाँ पर जाकर के जाने लगते हैं. Generally these winds carry little moisture. और इस winds जो ये blow कर रही हैं southwards की तरफ, उसमें लिटिल बिट मॉइस्चर होता है एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड. देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन. और जब ये जा रही हैं ऊपर वापस से इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया में, तो यहाँ ये थोड़ा बहुत मॉइस्चर अपने साथ ले जा रही हैं and that blow over the land, and therefore little rain is there और where no rain is there. बीच में अगर कोई hindrance आ जाता है तो उधर उस साइड no rain आ जाती है. Hence India should have been an arid land
बट इट इज नॉट सो। देखा जाए तो इंडिया एक एरिड लैंड बोला जा सकता है, बट वो एक तरीके से नहीं है, एरिड लैंड नहीं है। Now, I hope this Coriolis force and Ferry's law is understood. Yes, ma'am. Okay, fine. And arid meaning little moisture, and therefore they bring little or no rain. Hence, India has been have been an arid land. Arid land means the land having little or no rain. Clear? Too dry, it is too dry, and the vegetation is also very less. So that is called as arid region. Now the pressure and wind condition over India are unique. Now pressure and wind condition over India is unique. During winter there is a high pressure area north of Himalayas. अब Himalayas की तरफ एक high pressure area रहता है. Cold dry winds blow from the region to low pressure areas over the oceans to the south. Now cold dry winds from the Himalayas, they start blowing from this region to the low pressure area, जहाँ नीचे low pressure बना हुआ है साउथ की तरफ, उस तरफ ये cold winds जाती हैं. And in summer the low pressure area develops over the interior Asia, और पूरे एशिया की तरफ उस वक्त समर सीजन में लो प्रेशर बन जाता है, विंड का लो प्रेशर बन जाता है. And as well as over the northern western India, this causes a complete reversal of the direction of winds during summer. और इस तरीके से एक complete रिवर्सल बन जाता है, that is इक्वेटोरियल से जा रही है, और जब वो एकदम से रिवर्स हो करके यहाँ उसको स्पेस मिलती है तो वो इधर सब ट्रॉपिकल रीजन्स की तरफ जाती है. Clear? So from here, I hope we should end up here only. In our next class, we will continue from here. The pressure and wind condition over India are unique. From this paragraph, we will continue in our next class. Till then, read till here, and uh, I end up here only today. Thank you.